کا لکھا گیا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت سے ہم کلام خدا کو تلاوت کریں گے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہم سب پر ہو، سب کہیں آمین۔ آئیے سب اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کلام خدا میں سے، آپ مشہور زمانہ اس آیت کو جانتے ہیں۔ فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کے خط میں 2 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس آیت کو اس سے پہلے سنا ہوا ہے؟ سب نے سنا ہوا ہے؟ کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس آیت کو پہلے نہ سنا ہو؟ شاید ہی کوئی شاذ و نادر ایسا شخص ہو جس نے ان آیات کو کلام خدا میں سے نہ سنا ہو یا اس پر پیغام نہ سنا ہو، کیونکہ یہ بہت ہی مشہور زمانہ آیت ہے اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے ان آیات کے اندر؟ یسوع مسیح کا مزاج کیا ہے اور جس کو اپنانے کی یہاں پر خاص طور پر تعلیم دی گئی ہے، اس پر آج ہم غور کریں گے۔ اس زمانے کا مزاج کیا ہے، ابلیس کا مزاج کیا ہے، حیوانات کا مزاج کیا ہے، انسانوں کا مزاج کیا ہے، اور پھر خداوند یسوع المسیح کا مزاج کیا ہے۔ جب ہم زمانے پر غور کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ ابلیس جب وہ آسمان پر تھا تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خدا کے تخت کے پاس اس کی ایکسس موجود تھی، یعنی خدا کے تخت کے اوپر سایہ افغن کرتا تھا، اور کلام اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا مقرب فرشتہ تھا جو خدا کی پرستش کرتا تھا۔ وہ آسمانی کوائر کا لیڈر تھا، یعنی آسمان پر ایک مخلوق جس کو فرشتگان کہا جاتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس فرشتوں کی کوائر کا لیڈر تھا، استاد تھا، ماہر تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اسے کوئی ساز بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پرستش کے لیے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ بولتا تھا یا جب وہ چلتا تھا تو اس کے اندر سے اس قدر ساز نکلتے تھے کہ خدا خوش ہوتا تھا۔ خدا کے بیٹے فرشتوں کو بھی کہا گیا اور لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے جب مل کر گاتے تھے تو خدا خوش ہوتا تھا۔ کلام میں لکھا ہے پھر ایک وقت آیا کہ اب جو لوسیفر ہے، جو خدا کی کوائر کا لیڈر ہے، جو خدا کی پرستش کرتا ہے، جو خدا کے مزاج کو اپنائے ہوئے تھا، جو خدا کے مزاج کو لے کر اس کی ورشپ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، گاتا ہے، اور خدا خوش ہوتا ہے اور خدا اپنے سب فرشتوں سے خوش ہے۔ لیکن اسی اثنا کے اندر کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کے اندر، یعنی اس فرشتے کے اندر جس کا نام لوسیفر ہے، اس کے اندر ایک مزاج کی تبدیلی رونما ہوتی ہے اور وہ اپنے مزاج کو بدل لیتا ہے۔ پہلے وہ خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے، پہلے وہ خدا کو آنر دیتا ہے،
پہلے وہ خدا کے مزاج کو اپنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دم سے اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو دوسرے فرشتوں سے زیادہ افضل سمجھنا شروع کر دیا کہ باقی فرشتوں کی تو ایکسیس ہی خدا کے پاس نہیں ہے، خدا کے تخت کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تو خدا کے تخت کے اوپر، جیسے کسی باس کا کوئی سیکرٹری ہوتا ہے یا پرسنل سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، وہ جیسے کسی شخص کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تاکہ وہ اس کے کلوز رہے، اس کی پروٹیکشن کر سکے یا اس کی تمام ہدایات کو نوٹ کرے اور آگے فارورڈ کر سکے، جس طرح ایک سیکرٹری کا کام ہوتا ہے۔ سو اسی طرح سے لوسیفر جو ہے وہ خدا کے تخت کے بالکل پاس تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو آبزرو کرتا تھا اور خدا کی پرستش کرتا تھا اور خدا خوش ہوتا تھا۔ لیکن ایک دم سے اس کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی کہ اس نے کہا اب میں بھی کوئی چیز ہوں، اب میں دوسرے فرشتوں سے افضل ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے اس تمام فرشتوں کے اندر کبھی بھی یہ چیز نہیں آئی تھی کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں خدا کے بہت زیادہ قریب ترین ہوں اور باقی دور ہیں۔ آگے میں جا کر اس پر انسانوں کی مزاج پر بھی غور کروں گا اور پھر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ لیکن ہم ابھی بات کر رہے ہیں ابلیس کی مزاج کی، کہ اس کے اندر یہ مزاج کہاں سے آ گیا، اور اس نے اپنا مزاج کو تبدیل کر لیا اور اس نے کہا اب میں بھی کوئی چیز ہوں اور دوسرے فرشتے جو ہیں وہ مجھ سے کم تر ہیں یا مجھ سے انفیریئر ہیں اور میں دوسروں سے سپیریئر ہوں۔ اور اس کے اندر یہ جیسے ہی گھمنڈ آیا اور پھر اس نے اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہنا شروع کر دیا بلکہ کہا کہ اب میں خدا سے بھی بڑا تخت بناؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا۔ جیسے خدا کی پرستش کی جاتی ہے، جیسے فرشتے خدا کی پرستش کرتے ہیں، اب باقی فرشتے میری بھی پرستش کرنا شروع کریں گے، اب میں بھی کوئی چیز ہوں۔ اب ہم غور کریں گے کہ یہاں پر جو مزاج کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ۔ وہ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ۔ اور مائنڈ سیٹ جو انگلش کا لفظ ہے اس کو جب آپ اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے یا اس کا محاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ سوچ، تھنکنگ، تھاٹس، یعنی ذہن۔ سادہ زبان میں کہیں تو ذہن، جو کچھ ہم دماغ کے اندر سوچتے ہیں، یعنی دماغ کی بات ہو رہی ہے، یہاں سوچ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم یہاں پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو، ویسا ہی مائنڈ سیٹ رکھو، ویسی ہی سوچ رکھو جیسی سوچ مسیح یسوع کی بھی تھی۔ یعنی ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ویسی سوچ رکھو جیسی مسیح یسوع کی تھی، ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا اس پر ہم آخر میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوسیفر کا مزاج کیا تھا۔ پہلے سب خدا کے مزاج کو فالو کرتے تھے، فرشتگان، اور پھر اس کے بعد لوسیفر نے اس مزاج کے اندر تبدیلی رونما کر لی، اور پھر آگے سلسلہ بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، آدم اور حوا کو بنایا۔ اور آدم حوا کو بنانے سے پہلے ہمیں کلام میں ملتا ہے کہ خدا نے حیوانات کو بنایا۔ کن کو بنایا؟ حیوانات کو بنایا۔ حیوانات کے اندر بھی ایک مزاج پایا جاتا ہے، اور حیوانات کے اندر کیا مزاج پایا جاتا ہے؟ کہ جو کچھ ہے وہ چھین لو۔ آپ جانتے ہیں جانوروں کے اندر ایک فطرتی طور پر نظام پایا جاتا ہے، یہ پہلے نہیں تھا ان کے اندر، عدن کے اندر، یہ بعد میں ان کے اندر رونما ہوا جب وہ عدن سے باہر نکال دیے گئے۔ اور لکھا ہے کہ کیا ہوا ان کے اندر؟ کیا ہوتا ہے کہ شیر ہمیشہ دبک کے اپنے سے کمزور کو دبوچ لیتا ہے اور اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ آپ جب تمام حیوانات کے اندر اس نظام کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ہر کوئی یہاں پر ایسے ہی نظر آئے گا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔
ان حیوانات کے اندر یہ نظام فطرت آپ کو نظر آئے گا کہ چھین لو، پہلے مجھے دو. اور جب آپ انسانوں کی فطرت پر غور کرتے ہیں تو انسانوں کے اندر دو طرح کی فطرت پائی جاتی ہے. جیسے حیوانات کے اندر ایک طرح کی فطرت ہے کہ سب کچھ میرے لیے ہونا چاہیے، میری خوراک بن جائے ہر چیز. اور اسی طرح سے جب انسان کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ پہلے مجھے بعد میں دوسرے کو، یعنی یہ دوسرے کو بھی دینے کی فطرت رکھتا ہے، مزاج رکھتا ہے انسان. وہ یہ بھی مزاج رکھتا ہے کہ صرف میں ہی اکیلا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی مجھے دینا ہے، لیکن بعد میں. پہلے مجھے باقی بعد میں. اور یہاں تک بھی آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر فطرت کہاں تک، فطرتی طور پر آپ جب دیکھیں گے تو ان کے اندر مزاج میں بہت ساری کیٹیگری ہیں. انسانوں کے اندر مزاج میں بہت ساری کیٹیگری پائی جاتی ہیں. آج آپ جب دنیا پر غور کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، دوسرے جیسا بننا چاہتا ہے، دوسرے کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. اور یہ فطرت کہاں سے آئی ہے اس کے اندر؟ کیا خدا کے اندر یہ فطرت تھی؟ نہیں، یہ ابلیس کے اندر فطرت تھی. ابلیس نے یہ کہا کہ اب میں بھی کچھ چیز ہوں. اور اسی طرح سے انسانوں نے بھی ابلیس سے یہ اڈاپٹ کر لی فطرت کہ وہ بھی آج کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ چیز ہوں. وہ جب تھوڑا سا کوئی بات ہو جائے، مسئلہ مسائل ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم مجھے جانتا نہیں کہ میری پہنچ کہاں تک ہے، میں کون ہوں، میری اتھارٹی کیا ہے، میں 1 منٹ میں تجھے یہ کر سکتا ہوں، میں تجھے 1 منٹ میں وہ کر سکتا ہوں. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے جو آپ کو دیگر کیٹیگری کے اندر نظر آتا ہے. وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی پوزیشن پر ہے تو وہ کہتا ہے اب میں اس سے آگے بڑھ کر دکھاؤں گا. اب وہ حسد میں یا کسی بھی طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور کئی دفعہ اگر وہ آگے نہیں بھی بڑھ پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو اگے میں ہوں تو اگے نہیں نہ بات سکتا، یہ لتاں کھچو انہوں اپنے برابر کر. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ کہتا ہے چلو میں اندر تک نہیں نہ پہنچ سکتا. مطلب ہر ایک انسان کی کیپیسٹی ہے نا. وہ کہتا ہے اگر میں وہاں تک نہیں نہ پہنچ سکتا تو چلو ٹھیک ہے، انہوں تو میں اپنے برابر کر لوں نا لتاں کھچ کے. کہ وہ خود نہیں پہنچ سکتا لیکن دوسروں کو اپنے برابر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے سے کوئی بڑا نہ ہو، میرے سے کوئی سپیریئر نہ ہو. یہ ریس، یہ دوڑ کہاں سے ان کے اندر آئی؟ یہ ابلیس سے آئی. اس نے کہا میں دوسروں سے سپیریئر ہوں، دوسرے مجھ سے کم تر ہیں. اب میں بھی کوئی چیز ہوں، اب میں بھی تخت بناؤں گا، اب میری بھی پریز کی جائے گی. اور آج انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری تعریف کرو، میری تعریف کرو. اور جہاں آپ دیکھتے ہیں دوسروں کو آپ پریز کرتے ہیں اور لوگ بھی اپنے مطلب کا ڈر لی، پھر جھوٹی بھی تو سچی بھی سارا کچھ کری جاتے ہیں، بٹرنگ بھی کری جاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اپنا مفاد ان کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مزاج کہاں سے ہمارے اندر آ رہے ہیں؟ یہ مزاج ہے جو زمانے کا ہے. زمانہ کہتا ہے، آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آپ کو نظر آتا ہے ہر کوئی دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، زمانے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. معاشرے کا جو پہناوا ہے یا معاشرے کا جو رنگ ہے وہ اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا داری بھی تو ہے نا، انہوں بھی تو نال لے کے چلنا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی گل نہیں جی، ہوں روحانیت بھی نال نہ لے تو جسمانیت بھی نال نہ لے، چلنا ہے جی. دنیا نو زمانے نو بھی تو رکھنا ہے نا، رشتہ داریاں بھی تو رکھنی ہے نا، رکھ رکھاؤ نک بھی تو رکھنا ہے نا. یہ مزاج ہے ہمارے کہ ہم بائبل کو سمجھنا نہیں چاہتے. جو میں آخر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یسوع مسیح کا مزاج کیا تھا، جس پر مقدس پالوس رسول ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں وہ مزاج اپنانا ہے، ہمیں وہ مائنڈ سیٹ رکھنا ہے، ہمیں وہ سوچنا ہے جو یسوع کی سوچ تھی، ہمیں وہ سوچنا ہے جو خدا کی سوچ تھی. اور ہم
कौन सी सोच अपना रहे हैं जमाने की कि जी जमाने में भी तो नाल लेके चलना है। जमाना झूठ बोलता है, अच्छा चलो ये भी चलता है ना, थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, चलो मैं कोई हर वक्त नहीं ना, थोड़ा बहुत ही करना है ना, झूठ बोलनी है बोलना, गिबत, दूसरों की ऐबजोई, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, हसद करना, जो उनके पास है दिल में ये सोच लेना, ये मिजाज बना लेना, अब मैं भी वैसा ही बनूंगा, भावें वो गलत राह ही होवे तो उन्होंने कहना नहीं मैं भी यही और बनना है। हम अपना स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं और यहां तक कि हम अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो भी एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं दूसरों के सामने कि मेरी ये औकात है, मेरी ये हैसियत है। हम सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। हम सोशल मीडिया पर जो है वो ऐसे ऐसे आपको स्टेटस नजर आएंगे जो इंसान सोच भी नहीं, हाँ चलो कुछ चंगा काम किया है ना, कोई भलाई का काम किया लगाओ, ठीक है, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, लेकिन ऐसे ऐसे काम भी लोग लगा देते हैं अपनी जाती जिंदगी, अपनी ऐसी ऐसी चीजें जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो दूसरों के साथ शेयर करे, लेकिन उसके अंदर उनको डोपामिन प्लेयर मिलता है जिसकी वजह से वो करते जाते हैं और फिर उनकी सोच जो है वो ऑफ हो जाती है और वो ये जानते नहीं कि हम किस नहज पर पहुंच चुके हैं। ये जमाने का मिजाज, ये इब्लीस का मिजाज हमने आज अडॉप्ट कर लिया है। हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। मैनू को गल करके जाए तो जाए किथे, ये मिजाज है हमारा। ये वही है जिसके पीछे ये कोटेशन है कि ईंट का जवाब पत्थर से, कि मैनू को गल करके जाए किथे। एक गाली दे ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ पूरा करके जान देने हैं, तो हम जाना किथे ते खलो तू समझ नहीं है, समझना है मैनू गालां आंदियां ने, वेखी हुण मैं तैनूं किहड़ी-किहड़ी गाल कढ के वखाना। ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल करना, ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करना, हसद करना, झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना, अपने लिए सब कुछ समेट लेना और दूसरों को कहना कि खुदा माफ करे लेकिन मैं मुआज़रत के साथ यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लोग यहाँ तक कहते हैं कि यार गो टू हेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भाड़ में जाओ जहाँ मर्जी, जो मर्जी करो, सिर्फ मैं। हम अपनी ईगो को सामने रखते हैं, हम दूसरों की परवाह नहीं करते। यहाँ तक हमारे मिजाज बिगड़ चुके हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें बरकतें मिले, खुदा की बादशाही मिले, खुदा हम पर रहम करे, खुदा हमारे गुनाह मुआफ करे। कैसे? क्या हमने कभी गौर किया है कि ये मिजाज तो सारे हम इब्लीस के अपना रहे हैं, जमाने के अपना रहे हैं। जमाने से मुराद इब्लीस ही है, क्योंकि जमाने में जितनी भी बुराई है, गुनाह है, झूठ है, फ्रॉड है, दूसरों को धोखा देना है, उनको कत्ल करना है, उनको नीचा दिखाना, ये सारा मिजाज इब्लीस का है। दूसरों के अंदर शक पैदा करना, ये इब्लीस का काम है। इब्लीस ने सबसे पहले क्या किया? आदम और हव्वा के अंदर आके शक पैदा कर दिया। उसने कहा वाकई खुदा ने कहा, वो नहीं ऐसा नहीं है, खुदा ने अगर कहा ना अच्छा ऐसा कहा, तुम नहीं जानते कि तुम अगर ये फल खा लोगे तो तुम खुदा की मानद बन जाओगे। खुदा इसलिए नहीं चाहता कि तुम फल खाओ क्योंकि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। और इससे पहले किसने ये हरकत की थी? इब्लीस ने ये हरकत की थी। उसने कहा मैं खुदा की मानद बन जाऊंगा। अब वही काम वो आदम और हवा से करवा रहा है और उनसे भी कह रहा है। क्या आदम और हवा ने इससे पहले कभी ये ख्वाहिश की थी कि हम खुदा की मानद बन जाए? कभी नहीं की, क्योंकि वो हर रोज खुदा से ठंडे वक्त में बातचीत करते थे, लेकिन कभी उनके दिल में या उनकी सोच में ये बात नहीं आई थी। लेकिन एक शक का बीज जो ही आदम और हवा की जिंदगी में उसने बोया, लिखा है कि वो उसके झांसे में आ गए। उन्होंने उसके माइंडसेट को, उसकी सोच को, उसके मिजाज को अपना लिया और उन्होंने कहा हाँ वाकई हम खुदा की मानद बन जाएंगे, खुदा इसलिए हमें रोक रहा है कि इस फल को ना खाना, और खाते हैं। हवा ने खा लिया, उसने अपने शौहर को भी दिया और फिर उसके बाद उनके अंदर इब्लीस का मिजाज पैदा हो गया। इब्लीस ने शक पैदा किया और आज भी वो हर जिंदगी के अंदर शक पैदा कर रहा है और वो कहता है कि मेरा मिजाज अपनाओ। वो आज भी कहता है कि खुदा
इंसानों के साथ अच्छा नहीं करता। देखो वो गुनहगार है, उसके बावजूद मौजें मार रहा है, उसके पास इतनी दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, और तुम हर वक्त घुटनों पे बल रहते हो, हर वक्त दुआ करते हो, रोजा रखते हो, खुदा के कलाम को भी पढ़ते हो। ये सारा कुछ करने के बाद ना तुम बीमारी से बाहर निकलते हो, ना तुम्हारे पास इतनी दौलत है, ना तुम्हें कोई काम मिलता है, ना तुम कुछ और कर पाते हो, बल्कि तुम्हारे तो हालात ही बड़े खराब हैं। तो इसका मतलब है खुदा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तुम्हारे साथ। खुदा तुम्हारी फिक्र नहीं करता, परवाह नहीं करता। ये गलत कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा परवाह करता है, फिक्र करता है, कहते हैं सारी सोचें और फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी परवाह है। वो शक पैदा करता है इब्लीस। इन आयात को, कलाम को इस्तेमाल करके हमारे ज़हनों के अंदर ऐसा मिजाज डेवलप कर चुका है, ऐसा माइंडसेट डेवलप कर चुका है कि वो कहता है बस करते जाओ, कोई परवाह नहीं है, देखी जाएगी उस वक्त क्या होगा, जजमेंट के दिन क्या नहीं होगा वो उस वक्त देखेंगे। हमने बहुत सारे लोगों से ऐसे अल्फाज सुने होंगे, जब उनको तरबियत की जाए या समझाया जाए ना, तो वो कहते हैं यार उत्थे बाद से देखी जाएगी, पता नहीं की होना या नहीं होना, इतने तो मौजा मार लेंगे। यहां तक इंसान कहता। तो ये माइंडसेट हमारे अंदर कहां से आ गया? और इस माइंडसेट के साथ अगर आप सोचते हैं कि ये सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर आप गलती पर हैं। आइए कलाम खुदा पर गौर करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। लिखा है, जब हम 2 बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा माइक ले लीजिए और कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है ताकि आप सब बरकत पा सकें। 2 बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। क्वायर के पास माइक है, बेटा पढ़ना शुरू कीजिए प्लीज। अगर आपने कलाम खुदा को खोला हुआ है तो जल्दी से पढ़ना शुरू कीजिए और स्लोली। खुदा उनके पाक कलाम में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फकर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। अब यहाँ पर हम थोड़े स्लोली इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस बात को जान सकें। यहाँ बात हो रही है, मुकद्दस पौलुस रसूल मुखातब है किन से? फिलिपियों के लोगों से। फिलिपी का एक इलाके का नाम है, ये रोमी सल्तनत का एक कस्बा है फिलिपियों, जहाँ पर कलीसिया रहती थी, मौजूद थी और खुदा के लोग मौजूद थे। और इनके अंदर एक बड़ी खास बात पाई जाती थी फिलिपियों के अंदर कि ये मुकद्दस पौलुस रसूल की अपने फाइनेंशियली तौर पर बड़ी उनकी खिदमत किया करते थे, सपोर्ट करते थे मुकद्दस पौलुस रसूल को उस खिदमत के लिए जो मुकद्दस पौलुस रसूल दीगर जगहों पर, क्योंकि ये दौरान सफर ही रहते थे और जगह ब जगह गैर कौम में जाकर खिदमत करते थे, तो डेफिनेटली जब ट्रैवल करना है, खाना पीना रहना सहना सब चीजें उसके लिए दरकार होती हैं। तो फिलिपियों की जो कलीसिया थी ना, ये मुकद्दस पौलुस रसूल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करती थी कि तुम एवेंजलिज्म करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन इनके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। इनके अंदर क्या बिगाड़ पैदा शुरू हो गया? ये अपने से दूसरों को कमतर समझने शुरू हो गए और फिर अपने आप को सब कुछ समझना शुरू हो गए और गुरूर और तकब्बर और फख्र इनके अंदर आ गया, इस बात को लेकर कि साडी वजह तो खिदमत हो रही है, असि फाइनेंशियली सपोर्ट करने हैं पौलुस रसूल को, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर इसीलिए इसी तरह से वो दूसरी कलीसियाओं को कमतर समझना शुरू हो गए। फिलिपियों की जो कलीसिया थी वो क्या करना शुरू हो गई? वो जैसे दीगर कलीसियाएं और भी थी जगह ब जगह, जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी वहां पर जो है वो उनका आगाज किया और इसी तरह बाकी शागिर्दों ने भी। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, हम सुपीरियर हैं, ये बाकी लोग तो मदद नहीं करते पौलुस रसूल की या शागिर्दों की, हम करते हैं। इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू हो गए और कहने लगे कि यकसा मोहब्बत, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। पौलुस रसूल क्या कहता है? क्यों वो उनको ये तंबी कर रहा है, क्यों उनको सिखा रहा है और उनको समझा रहा है कि एक ही ख्याल रखो? तुमने ये मिजाज कहां से अपना लिए? तुम्हारे अंदर ये सोच कैसे पैदा हो गई कि तुम दूसरों से बड़े बनना चाहते हो, तुम दूसरों से सुपीरियर अपने आप को समझना शुरू हो गए हो, या फिर दूसरों को कुछ नहीं समझते या उनकी मदद नहीं करना चाहते, या फिर अगर मदद करते
कहता है कि ये तुम्हारे अंदर कहां से ख्याल पैदा होना शुरू हो गए, बल्कि एक ही ख्याल रखो। और जिस पर आगे जाकर वो कहता कौन सा ख्याल तुमने रखना है, इस पर हम गौर करेंगे। लिखा है तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। ये जो आज हमारा मिजाज है ना, दूसरों को अपने से कम समझना, दूसरों को ह्यूमिलेट कर देना, दूसरों की बेइज्जती कर देना, उनको कमतर समझना, कमी समझना, नकारा समझना, नालायक समझना। थोड़ी सी एजुकेशन, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा स्किल, थोड़ी सी अकल ज्यादा आ गई तो हम दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें कलीसियाओं में ऐसा दस्तूर नहीं है, ना खुदा का ऐसा दस्तूर है, बल्कि वो सबको इक्वल समझता है, सबको बरकत देता है, सबको इज्जत देता है, सबकी वो परवाह करता है और फिक्र करता है। और लिखा है पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं कि फरोतनी और आजिज़ी अपनाओ और फख्र या तफरके अपने अंदर पैदा ना करो कि वो कमतर है और मैं, वो कलीसिया कमतर है और मैं। आज हमारे भी यहाँ के कलीसियाओं में क्या होता है, कलीसियाओं डिनोमिनेशंस में भी ऐसा होता है, वो फलानी कलीसिया हो छड्डो जी, वो तो छोटी हो पटियाली हो तो बिल्कुल ही जी नलायक जाहिल हो, खुदा माफ करे। कहां से हमारे अंदर ये सोच आ गई? यही फिलिपियों के अंदर थी जिससे मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोका और उसने कहा तुम बेजा फख्र ना करो, तफरके ना पैदा करो, अपने अंदर गुरूर ना, तकब्बुर ना लेकर आओ, क्योंकि ये तो इब्लीस की फितरत है, ये तो उसका मिजाज था कि उसके अंदर गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया और तुमने इसको अपना लिया। हालांकि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और आगे क्या लिखा है, फरोती और अपने आप से दूसरे को क्या करो, दूसरे को क्या समझो, बेहतर समझो। क्या हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं? ये मिजाज बताएगा आपका, मिजाज बिल्ड हो चुका है ना, कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है, किरदार आपका बन चुका है। क्या कि दूसरे को अपने तो घट समझना। लेकिन कलाम क्या सिखाता है? कलाम सिखाता है कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो, दूसरे को अपने से बेहतर समझो। आगे पढ़े जी 2 आयत से। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया, हालेलुया। सो कलामे खुदा यहाँ क्या फरमाता है, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं हर एक अपने ही हाल पर गौर ना करे। असी ते अपने पेट के हाथ मारने हैं, असी ते अपने घर में बस करना चाहते हैं, हम तो अपने आप को ही बस संवारना चाहते हैं, हम तो अपने आप ही सिर्फ अकेले तरक्की करना चाहते हैं, हम तो सिर्फ खुद ही महल चुबारे और दौलत और शोहरत और ये सब कुछ समेटना चाहते हैं। लेकिन पौलुस रसूल क्या फरमाता है, सिर्फ अपने ही हाल पर गौर ना करो बल्कि दूसरों पर भी गौर करो, कलीसियाओं पर भी गौर करो, अपने हमसाए पर भी गौर करो, अपने रिश्तेदारों पर भी गौर करो, अपने आस पड़ोस पर भी गौर करो, अपनी कलीसियाओं पर भी गौर करो कि वो किस हालत में जिंदगी बसर कर रही है। कलाम मुकद्दस सिखाता है सिर्फ अपने ही अपने पर ना करो सब कुछ, बल्कि दूसरों के हाल पर भी गौर करो। और आगे क्या खूबसूरत बात वो फरमाता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आखिर में सिर्फ यीशु मसीह के मिजाज पर गौर करके हम दुआ करेंगे। कलाम खुदा में क्या लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो। आज हम में से हर किसी को अपने मिजाज का बखूबी पता है, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिन्होंने अपने मिजाज का ना पता होगा, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं हम अपने आप को तो बेहतर जानते हैं, हमसे अपने आप से बेहतर दूसरा कोई नहीं हमें जानता। सो इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करना चाहता, इसलिए आप पर छोड़ता हूं कि आप खुद फैसला करें कि आप कौन सा मिजाज रखते हैं। एक इब्लीस का मिजाज है, एक हैवानात का मिजाज है और एक इंसानों का मिजाज है। पहले मैनू दूसरे नु बाद।
जो कुछ बच गया तो मदद कर देंगे, नहीं। कलाम में लिखा है पहले दूसरों के हाल पर गौर करो और फिर अपने बारे में। लेकिन हम उल्टा करते हैं, और ये अबलीस की फितरत और उसका मिजाज और उसकी सोच है कि वो कहता है पहले मैं फिर दूसरे। सो इसलिए कलाम खुदा में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो। कैसा था यीशु मसीह का मिजाज? आइए इसको बड़ी खूबसूरती के साथ मुकद्दस पौलुस रसूल ने बयान किया है। 6 आयत से पढ़ना शुरू कीजिए कि यीशु मसीह का मिजाज क्या था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि अगरचा वो खुदा की सूरत पर था, क्या था? खुदा की सूरत पर था, लेकिन खुदा के बराबर अपने आप को समझने के लिए कलाम खुदा में लिखा है बल्कि खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। और आगे जब लिखा है 7 आयत में बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। क्या कर दिया? खाली कर दिया। यीशु मसीह हमेशा से खुदा के साथ है, ट्रिनिटी का हिस्सा है। वो हमेशा से जब आसमान और जमीन और ये सब कुछ बन रहा था, यीशु मसीह उस वक्त भी बाप के साथ था। लेकिन इसके बावजूद खुदा का जलाल जो उसके अंदर था उसने छोड़ दिया। जब वो इस दुनिया में आया तो कलाम में लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया। इस खाली से मुराद ये है कि उसने वो अथॉरिटी और वो जलाल जो खुदा बाप के साथ वो रखता था उसको उसने खाली कर दिया। और कलाम में लिखा है एक इंसान बन गया और इंसानों के मुशाबे हो गया। और यहाँ तक कलाम खुदा में लिखा है अपने आप को पस्त कर दिया। क्या कर दिया? पस्त कर दिया। पस्त होने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अपने आप को नीचे गिरा देना। और लिखा है कि अपने आप को यहां तक पस्त कर दिया कि यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। कौन सी मौत? सलीबी मौत गवारा की। सो उसने खुदाई कुदरत और जलाल उसको जब जमीन पर आया तो अपने आप को खाली कर दिया। एक इंसानी सूरत इख्तियार की, जमीन पर रहा, कामिल इंसान बना। इंसान होने के बावजूद आज हम बड़े गिले शिकवे करते हैं, देखो जी थोड़ा बहुत चलता ही है ना, इंसान मट्टियां ये तो कोई इंसान होवे तो उन्होंने पूछ के देखो ना कि किवें सर्वाइव करना पैंदा है। कलाम में लिखा है यीशु मसीह इंसान बना और इंसान बन के हमारी तरह खाता था, पीता था, सोता था, रहता था, हमारी तरह तालीम हासिल की, हमारी तरह उसने माँ बाप की इज्जत की, हमारी ही तरह वो सब कुछ करता रहा। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है इसके बावजूद भी उसने कहा है कोई जो मुझ में गुनाह साबित करे। कलाम में लिखा है उन सारी चीजों के बावजूद जो एक इंसान में होनी चाहिए यीशु मसीह में थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, उसने कभी कोई कत्ल नहीं किया, उसने कभी किसी से हसद नहीं की, उसने कभी किसी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, उसने कभी मेरे अजीजों गाली खाकर गाली नहीं दी, उसने कभी तमाचा खाकर तमाचा नहीं मारा, उसने कभी मेरे अजीजों ये है यीशु मसीह का मिजाज जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। उसने हमेशा दूसरों की फिक्र की। उसने हमेशा जब शागिर्दों ने कहा खुदावंद जी अब शाम हो गई है, ये 5000 से ज्यादा की भीड़ है, हम कहां से रोटियां लाएंगे, इजाजत दे, इनको रुखसत कर दे, इनको घरों में भेज दे। उसने कहा नहीं, ये सुबह से आज शाम तक मेरे साथ मुसलसल रहे हैं, अब ऐसा नहीं मैं कर सकता। बल्कि उसने अपने बारे में नहीं सोचा जैसे शागिर्द सोच रहे थे कि आओ जी अपनी रोटी टुकर का कोई बंदोबस्त करिए और इन्होंने भी इजाजत दे कि जाके अपनी रोटी टुकर का बंदोबस्त करन। बल्कि खुदावंद ने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा 2 रोटियां और 5 मछलियां। और लिखा है 2 मछलियां और 5 रोटियां हमारे पास। और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बहुत है, ले आओ। और जब वो ले आए तो कलाम में लिखा उन पर बरकत चाहिए और कहा तुम भी ने कुछ खाने के लिए दो, बाहर से नहीं है इंतजाम करेंगे, तुम्हारा काम है पहले तुम खाने से पहले इनको खिलाओ, इनकी फिक्र करो। हमेशा मसीह खुदावंद ने दूसरों की फिक्र पहले की, अपनी फिक्र नहीं की। खुद नहीं खाया बल्कि दूसरों को पहले खिलाया। और कलाम में लिखा है वहां पर 5000 लोगों को एक ही वक्त में मसीह खुदावंद ने
उन 2 मछलियों और 5 रोटियों से खाना खिला दिया। हमेशा मसीह खुदावंद दूसरों की फिक्र करते हुए नजर आते हैं। एक और झगड़ा हो गया शागिर्दों के दरमियान, हम में से बड़ा कौन है। मसीह खुदावंद ने सुन लिया और वो दिलों और गुर्दों के इरादों को भी जानने वाला है। कलाम में लिखा है, मसीह खुदावंद ने फिर वहीं पर नहीं उन्हें सिखाया बल्कि एक प्रैक्टिकल मिसाल देकर समझाया। और आप जानते हैं क्या मिसाल दी। कलाम में लिखा है, मसीह खुदावंद ने कहा, आओ शागिर्दों, चलना शुरू हो गया, पूछना शुरू किया, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूं। किसी ने कहा तू खुदावंद है, तू नबी है। किसी ने कहा तू हमारा उस्ताद है, तू हमारा रब्बी है, तू हमारा खुदावंद है। मुकद्दस पतरस जो बहुत प्यार करते थे खुदावंद यीशु मसीह से, उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से बताना शुरू कर दिया। फिर मसीह खुदावंद ने एक जगह रुककर, कलाम में लिखा है, अपने शागिर्दों के पांव धोना शुरू कर दिए। क्या किया? पांव धोना शुरू कर दिए, शागिर्दों के पांव धोना शुरू कर दिए। और धोकर जब बैठ गए तो कलाम में लिखा है, फिर उन्हें समझाया और उन्हें कहा, अगर मैं उस्ताद हूं, तुम मुझे अगर उस्ताद कहते हो तो खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं, मैं रब्बी हूं, मैं नबी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह हूं। मैं जो हूं सो मैं हूं। तुम मुझे अगर उस्ताद कहते हो तो खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। और अगर मुझ उस्ताद ने, ध्यान से सुनिए बातें, अगर मुझ उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो सोचो तुम्हें क्या कुछ करना चाहिए। और फिर फरमाया, अगर तुम में कोई बड़ा होना चाहता है तो सबका खादम बने, नौकर बने, हलीम बने, गुलाम बन जाए, आजिज बन जाए, फरोतन बन जाए। ये है मसीह खुदावंद की तालीम जो उसने प्रैक्टिकली अपने शागिर्दों को करके समझाई और सिखाई। ये है मेरे मसीह का मिजाज। जब कोई उसके सर पर कांटों का ताज रखता है, जब कोई उसकी दाढ़ी को नोचता है, जब कोई उसकी पसली में नेजा मारता है, जब कोई मेरे अजीजों उसके हाथों और पांव में कील ठोकता है, जब कोई उसके जो है वो दाढ़ी को नोचता है, उस पर थूकता है, जब कोई उसे लाम तान करता है, तो कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह रिप्लाई में उसको गाली नहीं देता, उस पर थूकता नहीं है, उस पर उसके हाथों और पांव में कील नहीं ठोकता, बल्कि कलाम में लिखा है, वो तन तनहा जब इन सारे जुल्मों को भी बर्दाश्त कर रहा था तो सलीब पर खड़े हुए कहता है, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये है मेरे मसीह का मिजाज, ये है मेरे यीशु मसीह का माइंडसेट, ये है मेरे यीशु मसीह की तालीम जो वो कहता है। और इसीलिए पौलुस रसूल ये कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का यह मिजाज था कि वो सब कुछ होने के बावजूद खाली कर दिया अपने आप को। कलाम में लिखा एक और वाकया पेश आया, जब सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने के लिए बागे गतसमनी के अंदर आए तो कलाम में लिखा है वहां पर क्या हुआ। मुकद्दस पतरस जज्बाती होके, एक जो नौकर था सिपाहियों में से कोई, उसका कान उड़ा दिया, तलवारें निकाल ली, तलवारें निकाल के मुकाबला करने लगे कि यीशु मसीह को कोई खबरदार पकड़े। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? क्या उनको इजाजत दी कि ठीक है करो लड़ाई, मुकाबला करो? नहीं, फौरन पतरस को पकड़ा और कहा, पतरस तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। और फिर उसके बाद आपने फरमाया, अगर मैं चाहता तो मैं अपने बाप से दरख्वास्त करता और वो 12 तुमन फरिश्ते आसमान से मेरी मदद के लिए भेज देते। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं तो किसी और मकसद के लिए आया हूं। मेरा आने का मकसद, मेरा मिजाज कुछ और है, तुम क्या कर रहे हो? इसीलिए आपने फरमाया ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने फरमाया अगर मैं चाहता तो आसमान से फरिश्तों की एक लश्कर आ जाती। 12 तुमन 72,000 फरिश्ते। एक तो फरिश्ता अगर आ जाए ना, तो आप सदूम और अमूरा को जानते हैं। सदूम और अमूरा को जब बर्बाद किया गया तो कितने फरिश्ते आए थे? दो फरिश्ते आए थे। और सोचिए, 2 फरिश्तों ने सदूम और अमूरा को
सफा हस्ती से ख़त्म कर दिया था। तो अगर 72,000 फरिश्ते आ जाते तो फिर क्या होता, सोचिए। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया अपने शागिर्दों को प्रैक्टिकली वहाँ पर, और कहा पतरस तलवार म्यान में रख, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ और बताने आया हूँ, मेरा मिजाज कुछ और है, ये मिजाज मेरा नहीं है, ये इब्लीस का मिजाज है, बदला लेना, मुकाबला करना। बल्कि आपने फरमाया ज़रूरत नहीं इसकी, बल्कि अपनी तलवार म्यान में रख। ये है मेरे यीशु मसीह का मिजाज। वो उन सिपाहियों से भी कहता है ए बाप इनको मुआफ़ करो, वो उन लोगों से भी कहता है इनको मुआफ़ करो, दुश्मनों के लिए दुआ करो। कोई दुनिया का मजहब, कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपने दुश्मन के लिए दुआ करे, लेकिन यीशु मसीह का मिजाज है, वो कहता है दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। इसीलिए उसने करके भी दिखाया, ये नहीं कि जुबानी कलामी, सलीब पर जो उसके दुश्मन थे, जो उसे सलीब चढ़ा रहे थे, उनके लिए भी दुआ करता है ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये है मेरे यीशु का मिजाज, ये है यीशु मसीह का मिजाज। ये नहीं कि दूसरों से आगे बढ़ना, कंपैरिजन करना, ये कंपैरिजन नहीं है खुदा की तरफ से, ये इब्लीस की तरफ से है। क्योंकि खुदा ने हर किसी को यूनिक बनाया है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, जितने भी हैं, सबको खुदा ने यूनिक बनाया। हर कोई अपने आप में स्पेशल है, लेकिन हर एक की कैपेसिटी है, हर एक की हदूद है। वो उस हदूद में ही रहकर आगे बढ़ सकता है, मुकाबलेबाजी नहीं कर सकता, जो हम करते हैं आज दुनिया में। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या यीशु मसीह दूसरों से आगे बढ़ा, बढ़ के दिखाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मसीह खुदावंद ने हमेशा दूसरों को इज्जत दी, ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दी, फिक्र की, दूसरों की केयर की, और यही खुदावंद का मिजाज है। और इसीलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं हमें यीशु मसीह का मिजाज अपनाना है। और यीशु मसीह का मिजाज जो मैं बातें कर रहा हूं वो है, और हमें आज से अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमारा मिजाज क्या है। वो जो ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, जमाने का रख रखाव, दुनिया का दस्तूर, इब्लीस का दस्तूर, हैवानात का जो मिजाज है वो, या फिर यीशु मसीह का मिजाज। यीशु मसीह का मिजाज कुछ और है। इसलिए याद रखें, हमें दुनिया के मिजाज को छोड़ना पड़ेगा, तब हम यीशु मसीह का मिजाज अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप खाली नहीं होंगे ना, तब तक आप में दूसरा मिजाज ऐड नहीं होगा। सो पहले जो आप में भरा हुआ है वो निकालना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मसीह यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया। आज जो कुछ आपने अपने अंदर गंद बला और चीजें भरी हुई हैं, हर तरह की बुराई, हर तरह का झूठ, हर तरह का फ्रॉड, धोखा, ऐबजोई, अपने से कमतर समझना, दूसरों की फिक्र ना करना, और ईंट का जवाब पत्थर से देना, और दांत के बदले दांत, और इसी तरह की बाकी चीजें जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें अंदर से निकालनी पड़ेंगी, जो हमारे अंदर भर चुकी है, और हम वही रिएक्ट करते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है जो कुछ इंसान के अंदर भरा हुआ है वही बाहर आता है। और हमारे अंदर जो झूठ और जो फ्रेब, धोखा, चोरी, झूठी गवाही, दूसरों के साथ धोखा करना, फ्रॉड करना, आज नए नए स्कैम, डिजिटल दौर के स्कैम आ गए। आप हैरान रह जाते हैं, घर बैठे आपकी सारी उम्र की मेहनत कमाई जो है वो कोई उड़ा के ऐसे लेके चला जाता है। कैसे कैसे फ्रॉड आ गए, ये कहां से आ रहे हैं? क्या यीशु मसीह का ऐसा मिजाज है? क्या यीशु मसीह ने किसी को धोखा दिया? क्या यीशु मसीह ने किसी पर लाठी चार्ज किया? क्या यीशु मसीह ने किसी को गाली दी? क्या यीशु मसीह ने तमाचा खाकर तमाचा वापस मारा? नहीं। यह है यीशु मसीह का मिजाज। अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, दूसरों की फिक्र करो, हलीम और फरोतन बन जाओ, चाहे आपके पास जितना कुछ भी हो। क्या खुदावंद यीशु मसीह के पास कमी थी? कलाम में लिखा वो खुदा की सूरत पर है, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को हलीम और फरोतन और आजिज बना लिया। सो हमारे पास जो कुछ है ये खुदा की बरकतें समझें और उसका शुक्र अदा करें, ना कि इस पर गरूर और तकब्बुर करें और दूसरों को साड़ें या जलाएं या हसद करें। कई दफा हम दूसरों के पास, जिनके पास नहीं होता, हम पहन के या कर करके ऐसे काम दिखाते हैं ताकि दूसरे जो है
وہ جلے بیچارے, حسد کریں. اور ایسا ہوتا ہے, یہ سائیکالوجیکل ایک افیکٹ ہے. انسان جو ہے وہ اس سے افینڈ ہو جاتا ہے, متاثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے یہ زمانے کا مزاج, حیوانات کا مزاج, ابلیس کا مزاج اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا, اور ہمیں یسوع مسیح کا مزاج اپنانا ہوگا. وہ مزاج جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حلیم اور عاجز بننا ہے, ہمیں فروتن بننا ہے, ہمیں فخر نہیں کرنا, ہمیں دوسروں سے اپنے آپ کو سپیریئر نہیں سمجھنا, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا ہے. بلکہ کلام سکھاتا ہے ہر کوئی اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھے. یہ ہے یسوع مسیح کا مزاج. سو ہمیں دوسرے کو بہتر سمجھنا ہوگا. اور پھر لکھا ہے کلام خدا میں, جب یسوع مسیح کا مزاج اپنا لیتا ہے کوئی, جب اپنے آپ کو کوئی خالی کر دیتا ہے, جب اپنی زندگی سے وہ زمانے کا مزاج, یہ زمانے کی جو باتیں ہیں, یا زمانے کا جو طور طریقہ ہے, یا زمانے کا جو بھی گھمنڈ ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, بدگوئی ہے, یا عیب جوئی ہے, یا دوسروں سے آگے بڑھنے کی جستجو ہے, ریس ہے, یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے آپ اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکیں گے, تو کلام خدا میں لکھا ہے جب یسوع مسیح خدا کی صورت پر تھا, اور کلام میں لکھا ہے جب وہ انسانوں کو نجات دینے کے لیے آیا تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور کلام خدا میں لکھا ہے یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی, علیم فروتن عاجز بن گیا. اس نے ظلم سہ کر, دکھ پا کر دکھ نہیں دیا, اس نے صلیب اٹھا کر دوسروں کے لیے کوئی اور جو ہے وہ تکلیف کا انتظام نہیں کیا, بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے وہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن اور عاجز بنا دیتا ہے, اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے, اپنی خدائی قدرت اور اس جلال کو وہ الگ کر دیتا ہے کچھ ٹائم کے لیے, تاکہ نجات کا کام پورا ہو سکے. اور کلام خدا میں جب ہم 9 آیت میں دیکھتے ہیں تو آگے لکھا ہے فلیپیوں 2 باب اور 9 آیت کے اندر, جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا اور ایسا مزاج اپنایا جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور کلام میں لکھا ہے جب وہ اس نجات کے منصوبے کو پورا کر چکا تو اس کے بعد کلام خدا میں لکھا ہے خدا باپ نے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا. یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جب وہ حلیم اور عاجز اور فروتن بن گیا اور نجات کے منصوبے کو پورا کر دیا, تو کلام خدا میں لکھا ہے اس کے بعد خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس جیسا کوئی اور نام نہیں ہے جیسا نام یسوع مسیح کو بخشا گیا. اور کلام خدا میں 10 آیت میں لکھا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, آسمانیوں کا ہو یا زمین کا ہو یا زمین کے نیچے کا ہو. جب آپ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن اور عاجز بنا لیتے ہیں اور یسوع مسیح کا مزاج اپنا لیتے ہیں, جیسے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے باپ کے مزاج کو اپنایا, کیونکہ اس نے فرمایا جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں. اور جب اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ اپنے باپ کے مزاج کو اپناتے تھے, اور جیسے ہی اس نے اپنے باپ کے مزاج کو اپنایا تو پھر باپ نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور پھر فرمایا نہ صرف زمین بلکہ آسمان کا ہر ایک گھٹنا اور زمین کا ہر ایک گھٹنا اور زمین کے نیچے کا ہر ایک گھٹنا یسوع نام کے آگے جھکے گا. یہاں تک اس نے اس کو سر بلند کیا. یہ ہے یسوع مسیح کے مزاج کی قدرت اور طاقت. اگر آج ہم بھی یسوع مسیح کا مزاج اپنا لیں گے, اور پھر آگے 11 آیت میں لکھا خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا بند ہے. آج خدا آپ سے پیار کرتا ہے, آپ کی فکر کرتا ہے. وہ فرماتا ہے میں تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ. کلام میں لکھا ہے وہ گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. اس نے فرمایا اپنی ساری سوچیں اور فکریں مجھے دے دو کیونکہ میں تمہاری بہتر فکر کرتا ہوں. اس نے فرمایا
पहले खुदा की बादशाही को ढूंढो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। वो खुदा जो फरमाता है न सिर्फ इस दुनिया की हर चीज की आपकी फिक्र करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का मिजाज अपना लेंगे तो आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपके पास दौलत नहीं होगी, आपके पास शोहरत नहीं होगी, आपके पास मालो मता नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके पास जो मौजूद है, अगर आप दुनिया का मिजाज अब छोड़कर यीशु मसीह का मिजाज अपना लेंगे तो जो कुछ पास है इस वक्त, इससे भी डबल खुदा आपको मल्टीप्लाई करके वापस लौटाएगा। क्योंकि खुदा अपने प्यार करने वालों को, अपने ताल्बों को नींद ही में अदा कर देता है, फिर शायद आपको मांगना ही ना पड़े, बल्कि वो नींद ही में आपको अदा कर दे। बस तालिब होकर तो देखिए, यीशु मसीह का मिजाज तो अपना कर देखिए, यकीन जानिए बरकतों की कमी नहीं रहेगी, दौलत की कमी नहीं होगी, शोहरत की कमी नहीं होगी, मालो मता की कमी नहीं होगी, इज्जत की कमी नहीं होगी। क्योंकि इज्जत, दौलत, शोहरत न मशरिक से आती है न मगरिब से आती है, बल्कि आसमान से आती है, खुदा के हाथ में है, और वो जिसे चाहता है इज्जत बख्शता है। जब है ही उसके हाथ में तो फिर उसका मिजाज अपना कर देख लीजिए। यकीन जानिए न इस दुनिया में वो आपको कभी रुसवा होने देगा और ना ही हमेशा की ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपको तन्हा और अकेला नहीं छोड़ कर गया, बल्कि वो जाते वक्त आज तक दुनिया के किसी नबी, पैगंबर और रसूल ने ये वादा नहीं किया और ना कहा कि मैं जाता हूँ और फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, बल्कि उसने इस दुनिया में जाने से पहले हमारे लिए एक बेहतर इंतजाम किया और उसने कहा मैं जाने से पहले मैं जाता हूं और एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं। यानी जब तक मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा फिजिकली, उन तब तक एक रूह कुद्दस जो है वो आपका निगहबान होगा, आपका मददगार होगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपको बताएगा, सिखाएगा, ताकि आप यतीम और अकेले और तन्हा महसूस ना करें। बल्कि फिर उसने ये भी फरमाया अब मैं जाता हूं, मददगार भेज के जाता हूं और फिर उसके बाद वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, ताकि हम सब एक साथ रहे। ये है यीशु मसीह का मिजाज, ये है उसका माइंडसेट, ये है उसकी सोच। और अगर आज आप उसके माइंडसेट को अपना लें, उसकी सोच को, उसके उस मिजाज को और नज़रिए को, तो यकीन जानिए आप इस दुनिया में भी बाइसे बरकत ठहरेंगे और हमेशा की ज़िंदगी भी आपको मिलेगी, क्योंकि उसका वादा है। उसने एक ही बात में कंक्लूड कर दिया। जब आप कदस यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब की 16 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है खुदा आज भी आपसे मोहब्बत करता है, चाहे आप कितने भी गुनहगार क्यों ना, आप कितने भी पापी क्यों ना, शराबी क्यों ना, गुनहगार क्यों ना, तब भी खुदा आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। और वो अपने बेटे को इसीलिए उसने इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये है आज का पैगाम का जो है मकसद आप तक पहुंचाना, कि आप यीशु मसीह के मिजाज को अपनाइए, इस दुनिया के मिजाज को छोड़ दीजिए। दुनिया क्या कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यीशु मसीह कुछ कहना शुरू हो गया तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए यकीन जानिए दुनिया की फिक्र छोड़ दीजिए, दुनिया क्या कहती है छोड़ दीजिए, दुनिया का मिजाज अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। बहुत जल्द, जितनी जल्दी कर सकें बेहतर होगा, और यीशु मसीह का मिजाज अपनाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आती है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, आइए दुआ करना शुरू कीजिए मेरे अज़ीज़ों।